So let's start to solve this problem. First, we have to draw the xy line. This is xy line and vertical plane, horizontal plane. Now, point A position is given, so we have to indicate the point A, that is 10 mm above the horizontal plane. So we show the distance in vertical plane, means 12 mm. So we just point out the 12 mm, this point, and 10 mm front of VP. So we just point out the 10 mm here. Okay. Now what we have to do, draw a parallel line from the points, that is our A, this point, that is our A dash. So students, I draw the parallel line from A and A dash to XY line, to XY line. Now next things, 30 degree from the horizontal. So we draw the 30 degree from the horizontal and 40 degree from the vertical. So we see this in the horizontal plane. Now what we have to do, we have to cut the 75 degree, sorry, 75 mm length from this projection. So put the scale and point out the 75 distance. Now, so this distance is our true length.
this distance is our true length, and this is our B1 dash, and this is our B1. B1 dash and B1. So we have to draw the perpendicular line from this point, okay, and parallel line from B1 and B1 dash. Okay. Now what is next we have to do? So we have to do, this is our one point, okay. Now we have take our compass, select this distance, select A21 distance, and mark a arc. Mark a arc, okay. So this arc where cut this projection, that is our B, and I draw the perpendicular line from the B, which is cut the B dash parallel line, that is our B dash, okay. Now we have to make the AB line and A dash B line. Hello, sir. Yes. So can you explain again how this B point came? हाँ, एक्चुअली सी, अभी आप लोग इसको देखिए कि ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड है। तो ये आपको पता चला ना। अभी ए और ए डैश में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। ओके, सो क्या हुआ कि जो ए डैश है उससे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन। सो क्या होगा कि ब्लू लाइन में हम क्या कहते हैं कि 75 mm का कट करेंगे ये। तो ये जो लेंथ है कितना है, 75 mm। तो ये क्या है, इस ये जो सीक्वेंस है ए बी वन डैश, ये क्या है आपका ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ, ओके। सो फिर क्या करेंगे कि ये जो हमको ट्रू लेंथ मिला है ना, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर लाइन ए की जो पैरेलल लाइन है, जो लाइन हमने ए से पैरेलली ड्रॉ किया है, उसको 1 पे कट करती है। किधर कट करती है? 1 पे कट करती है। फिर क्या करेंगे, हम A1 डिस्टेंस लेंगे, A से 1 का डिस्टेंस लेंगे कंपास में, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर ये जो B1 लाइन है पैरेलल, रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये आर्क इस B1 की पैरेलल लाइन को जहां पे कट करेगा वो आपका B पॉइंट हो जाएगा, ओके। ये जो A1 आर्क हमने ड्रॉ किया वो B को कहां पे कट करते हैं, यानी B1 को, B1 की जो लाइन है उसको जहां पे भी कट करेगा, दैट इज अवर B,
ओके, फिर बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि B1 डैश के पैरेलल लाइन को जहां पे कट करेगा वो हो जाएगा B डैश, ठीक है ना। फिर क्या हमने ए बी को मिलाया, दैट इज अवर टॉप व्यू, और ए डैश बी डैश को मिलाया, दैट इज अवर फ्रंट व्यू। ओके, तो ये एंगल आपका 40 हो गया, है ना। तो अभी इसमें सारी चीजें पता चल गई कि हमारा, देखिए क्या, ए डैश B1 डैश दैट इज ट्रू लेंथ, और यहां पे क्या ट्रू लेंथ है, ये ए B1 दैट इज अवर ट्रू लेंथ, ठीक है ना। और ए बी क्या है, दैट इज अवर टॉप व्यू, एंड ए डैश बी डैश इज अवर फ्रंट व्यू। ओके, सो जिसने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, who will get he will get the full marks, 8 out of 8. Okay, so we forward to next question. So we forward to next question. The next question is, a line 75 mm long make 45-degree inclination with vertical plane while its front view make 55 degree, okay, end A is 10 mm above the HP and 15 mm in front of vertical plane. If line is first coordinate, then draw the projection of line and find out the inclination. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका इंक्लिनेशन नहीं गिवन है, देयर इज नो इंक्लिनेशन गिवन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन से दिया हुआ है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से नहीं गिवन है। सो फर्स्ट write down the information what is given. So the information is given, AB is 75 mm, that is our true length. Inclination from vertical plane, that is 45 degree. Inclination from front view, that is front view, 55 degree, and A point is 10 mm above 2 HP and 15 in front of vertical plane. So हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमको फाइंड आउट करना है और प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन. सो दीज थिंग्स इज गिवन. हाउ वी स्टार्ट, द फर्स्ट स्टेप इज सेम, वी हैव टू ड्रॉ द XY लाइन. Okay, so let's start. Here we start from the XY line. The XY line I draw X, Y. फिर यहां पे वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, सो दैट इज गिवन लोकेशन ऑफ द ए. सो वी ड्रॉ द लोकेशन ऑफ द ए.
दैट इज 10 mm above द HP. सो ये 10 mm हम शो करेंगे वर्टिकल में. Okay, we put the point 10 mm and 15 mm in the front of vertical plane. So this is our A dash, this is our A. Okay, so next things, we have to draw the parallel line from this. We have to draw the parallel line from this A and A dash. Okay, so what we do, it's given that the inclination from the वर्टिकल प्लेन. सो वर्टिकल प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो किधर शो होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो होगा, यानी बिलो. सो वी हैव टू मेक द 45 डिग्री फ्रॉम हियर. So what is this value? This value is 45 degree. So what is next? What is next? The next is we have to cut the 75 distance from this inclined line. Okay. So that is our B1. This is our B1. Okay. So this is our B1. Okay. No confusion is there. Now front view inclination is given 75 mm. Sorry, 55 mm. So draw the inclination 55 degree from the line. So ये एंगल कितना है, 55 डिग्री है. लेकिन अभी ये जो है ना, ये आपका फ्रंट व्यू है, तो यहां से हम 75 mm नहीं कट कर सकते, क्योंकि फ्रंट व्यू की डिस्टेंस हमें मीन्स कितना लेंथ है उसका वो हमें नहीं मालूम है. वी डोंट नो द डिस्टेंस. दैट इज अवर B1. ओके, सो वी डोंट नो द distance of front view, so we just draw the angle line. Okay, so what we have to do next, we have to draw a parallel line from B1 to XY line. तो एक और पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ये. Okay, so Abhi, what is next? We have to draw the perpendicular line from the B1. Okay, सो ये B1 की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो A डैश की पैरेलल लाइन को किधर कट करता है, उसका नाम हम देंगे क्या, 1. ओके, सो अभी क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक द डिस्टेंस A डैश टू 1, A डैश टू 1 in the compass and mark a arc. See, make a arc. So
अभी ये आर्क आपका जिधर भी इस 55 एंगल की लाइन को कट करेगा वो आपका हो जाएगा बी डैश, दैट इज अवर बी डैश। और ये जो लेंथ मिली आपको ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दैट इज योर फ्रंट व्यू, this is your front view. Now what we have to do next, we have to draw the parallel line from B dash, see, draw the parallel line from B dash। अभी नेक्स्ट थिंग क्या करना है कि आप कंपास में 75 mm का डिस्टेंस लेंगे। कितना? 75 mm का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। अभी यहां पे देखिए हमने 75 mm का डिस्टेंस लिया और देखेंगे ये 75 mm किधर कट कर रहा है, आपको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ओके, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, B1 डैश, B1 dash, okay, so this point is B1 dash, okay। Now next things is we have to make the A dash and B1 dash, see, we have to make A dash and B1 dash this length, and this is our true length, this is our true length, okay। Now from the B1 dash make a puppet, okay। And now what we can do, now we have to, ये आपका जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये B1 की पैरेलल लाइन को जिधर भी कट करेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज योर B। नाउ मेड दी AB, okay, made the AB, so this is our top view, this is our top view, okay, so AB line is our top view। अभी देखिए हमको क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अभी देखिए ये एंगल ए बी और 1, ये देखिए ये जो एंगल है, ये बड़ा सा करके दिखाते, ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल जो होगा मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमको फाइंड आउट करना था, तो थीटा जो भी रहेगा आप प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे, दैट इज आवर इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। और अगर क्या कहते हैं कि आपको टॉप व्यू का इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, आप ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये बड़ा वाला, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंक्लिनेशन फ्रॉम द टॉप व्यू, ओके। सो
This is the things: front view, top view, true length, and this is also the true length. Okay, so this question is solved now. So students, there is any doubt, so you can ask the Hello, sir. question. Yes. So what is the difference between this question and the earlier one? Sorry, can you repeat the question? Sir, what is the difference between this question and the earlier one? हाँ, डिफरेंस क्या है दोनों में? जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हॉरिजेंटल प्लेन से और वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन गिवन था, है ना? और इसमें क्या है कि आपको वर्टिकल प्लेन से तो इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, लेकिन हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लिनेशन नहीं गिवन है. मतलब कि आपको एचपी से कितना इंक्लाइंड है लाइन, ये नहीं गिवन है ना? उसकी जगह पे क्या दे दिया है कि फ्रंट व्यू से जो इंक्लिनेशन गिवन है वो दिया है, और आपको हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है. पिछले क्वेश्चन में हॉरिजेंटल प्लेन से जो इंक्लिनेशन था वो गिवन था आपको, लेकिन इसमें क्या है, आपको फाइंड आउट करना है. ये डिफरेंस है. तो इसके लिए क्या हुआ, हाँ, पिछले में क्या हुआ कि हमने जस्ट जो इंक्लिनेशन वर्टिकल प्लेन से दिया था उसको हॉरिजेंटल प्लेन में बनाया, और जो हॉरिजेंटल प्लेन से वर्टिकल प्लेन में बनाया 75 mm का डिस्टेंस कट किया. ये आपका पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन खींची, जिधर कट किया उधर से आपका जस्ट क्रॉस किया तो हमको बी पॉइंट मिल गया और बी डैश पॉइंट मिल गया. बी पॉइंट एंड बी डैश पॉइंट मिल गया. दैट इज इजी. बट इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल, है ना? ये देखिए, ये थीटा हमने फाइंड आउट किया ना, जब भी प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर कर लेंगे तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना है, और ये एंगल हमेशा कितना 55 से कम रहेगा, क्योंकि 55 एंगल बड़ा है. अभी यहां पे देखिए, यहां पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द टॉप व्यू. तो टॉप व्यू से ये लाइन, इसका लाइन का टॉप व्यू कितना एंगल बनाती है, वो अगर ये देखिए कितना है, ये फाई है, तो फाई मेजर कर लेंगे. तो टॉप व्यू से कितना एंगल बन रहा है, या फिर टॉप व्यू कितना इंक्लाइंड है आपका वर्टिकल प्लेन से, ये फाइंड आउट हो जाएगा. ओके. So student, can I start the next question? Yes, sir. Okay. So next question is belongs to the projection of plane. Okay. So next question is belongs to the projection of plane. For the projection of the plane, the question is, okay, the question is a rectangular pentagon of 30 mm side is resting on the horizontal plane. Okay. One of its side with 45 degree surface inclined to the horizontal plane. Okay. Draw its projection when the side is horizontal plane में 30 degree inclined with the vertical plane. Okay. So यहां पे क्या है कि आपको पहले एज्यूम करना है कि जो भी हमारा पेंटागन प्रिज्म है वो क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन पे है. ओके. उसके बाद इसमें टोटल कितने डायग्राम बनते हैं वो देखिए.